जब एक्चुअली पहली बार आईपीएल में हम सभी ने प्रवीण जी को देखा तो सबकी रिएक्शन ये थी, अरे भाई ये कौन है? Yes. यू नो ये तो बहुत बड़े लग रहे हैं। और यूजुअली आप देखते हो कि 18, 20, 22 ऐसे कुछ साल के खिलाड़ी आते हैं, प्लेयर्स आते हैं। तो देन वी वर टोल्ड कि अरे ही मेड हिज डेब्यू एट 41, सो दैट इज व्हाट रियली अपील टू मी एज एन एक्टर। बट yes, I mean there I was a pace bowler. Here not many people know कि Praveen bhai used to bowl medium pace also before he switched to spin bowling. So वहाँ पे मतलब मीडियम पेस भी था, स्पिन बॉलिंग भी था और बैटिंग भी करते हैं तो बैटिंग भी था, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें थी। जब वो मेरे कैप्टन रह चुके थे और वो बाद में ये बात कहते कि आई वॉज एन इंस्पिरेशन, तो हम लोग अभी भी उनको इज अ लीजेंड लाइक, और उनके मुंह से वो बात सुनने के बाद तो आई कुडंट स्टॉप क्राइंग एक्चुअली, नो आई वॉज लिटरली क्राइंग। What next for you after this film? There's in fact one more film which I'll start now. I think I know. Yeah. It's a big one, yeah. Yeah, so hopefully in April is when we start shooting for that. Hi guys, this is Himesh and welcome to Pink Villa. Today I'm speaking to the team of a very special film, Kaun Praveen Tambe. Welcome to Pink Villa guys, it's lovely having you here. And firstly, congratulations to each one of you for the wonderful trailer that... Thank you. Thanks a lot. You know, my first question is to you sir. How did you decide on making this film? Like, when did you hear about Praveen Tambe sir and how did you decide to make it into a feature film? I was approached by Sudeep, Friday Film Works in Boot Room Sports Media. We have all heard of Praveen Tambe, you know, when he made his IPL debut. And we knew that he had, you know, we knew a bit about his life, that he made his debut at, you know, at an age. But we didn't really know the real story. You know, nobody knows what happened in those 40 years. Yeah. All of us know what happened after that. Yeah. But when I, you know, got into the story and when I started reading about it and when I got sucked into it, I really thought that it is one of the most inspiring story to be told. Yeah. And most of the times we make biopics because these people are popular or they are big names. Yeah. And so we, you know, tell their stories. But seldom do we make films where we make films because the stories have to be told. Yeah. So it is a story that needs to be told, and the story is the hero of this man, you know, who has led such an inspiring life. Okay. And I think that is what, you know, sucked me into it. And of course, it was a long process after that, but yeah, but that was the germ of the idea. Okay. And sir, when जब आपके पास, you know, Friday Film Works से आए के, you know, आपकी बायोपिक बनानी है उन्हें, how did you react at that point of time? क्या आपने instantly हाँ बोला कि आप two minds में थे कि आपको ऑब्वियसली सरप्राइज था, तो मैं एक ही चीज़ बोला, नहीं मुझे खेलना है एक्चुअली। जब वो आए मेरे पास तो मैं बोला कि मुझे खेलना है। Okay. ये फिल्म तो आई वॉज सरप्राइज, तो दो था कि एक तो क्यों फिल्म बन रही है, हाँ, और मुझे और खेलना है, तो ये क्या क्वेश्चन। ओके। फिर उन्होंने आपको कैसे कन्विंस किया ये? मतलब मुझे ऐसा लगता है उनको लगा उस वक्त कि अरे ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रहता है ना कि अरे भाई मुझे और काम करना है, अभी कहाँ दे रहे हो लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये ऑब्वियसली वो फीलिंग थी कि अरे मुझे खेलना और ये क्या सब है, हाँ। कि ये फिल्म है। मैं थोड़ा कंफ्यूज था मैं ओके। पहले। एंड देन इवेंचुअली आप धीरे धीरे करके एक्चुअली फिर बाद में मुझे पता चला, क्योंकि मैं जब आईपीएल खेला था फर्स्ट, हाँ। तो खेलने के बाद मुझे बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे। हार्डली मैं फेसबुक देखता था या इंस्टा पे नहीं था, ट्विटर पे नहीं, मगर फेसबुक पे था, या मेरे मैसेज पे, फ़ोन पे मैसेजेस आते थे कि सर मुझे भी खेलना है 41 पे। तो मैं उनको कैसे कन्वे करूँ, क्या यार मैं 41 ये सोच के नहीं खेल रहा था, मैं जस्ट पैशनेट था, क्रिकेट खेल रहा था। तो जब भी मुझे पता चला ये लग रहा है, तो मुझे लगा चलो एक्चुअली जो सब बोल रहे हैं मेरा एज है, मैं नहीं खेल सकता, एटलीस्ट वो इंस्पायर होंगे। तो तभी मैं थोड़ा कन्विंस हो गया कि मैं हाँ चलो ओके। And Shreyash, you know, how did you react when you were offered the role of Praveen Tambe sir? So I guess any actor in his right mind would give his right arm for a role like this. Yeah. You know, जो जयप्रकाश सर ने अभी कहा कि it is the story. The story is the hero. Yeah. And playing a hero of that hero is obviously the best thing that can happen to any actor. Yeah. तो जब एक्चुअली पहली बार आईपीएल में हम सभी ने प्रवीण जी को देखा, तो सबकी रिएक्शन ये थी, अरे भाई ये कौन है? Yes. You know, ये तो बहुत बड़े लग रहे हैं। और यूजुअली आप देखते हो कि 18, 20, 22 ऐसे कुछ साल के खिलाड़ी आते हैं, प्लेयर्स आते हैं। तो देन वी वर टोल्ड कि अरे ही मेड हिज डेब्यू एट 41,
41 में डेब्यू किया एंड देन वी सॉ हिज परफॉर्मेंस, विकेट ले रहे, अच्छा वही एंथुसियाज्म है, मतलब यंगस्टर्स शर्मा जाएंगे, ऐसी उनकी एनर्जी फील्ड पे देखने मिली। तो तभी लगता है आपको कि यार ये तो ना पिक्चर की कहानी है। ये बंदा अगर 41 में कुछ डेब्यू हुआ है तो आई एम श्योर इसके पहले इसकी जर्नी कुछ सॉलिड स्ट्रगल रहा होगा, तभी ये उम्र में अभी फाइनली आया है। एंड देन ऑब्वियसली व्हेन आई वाज कॉल्ड फॉर द फिल्म कि ऐसी फिल्म हम लोग बना रहे हैं, तो वुड यू बी कीन? तो आई रेड द एंटायर स्टोरी एंड आई वाज अमेज्ड। बट आई थिंक उनकी जो जर्नी रही है पूरी 20-22 साल की, जो मैंने स्क्रीन पे पोर्ट्रे की है, इट हैज़ बिन फिनोमिनल। क्या नहीं किया है इस इंसान ने, मतलब क्रिकेट से इतना प्यार और वो अपना सपना पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं हुआ। तो ऐसा रोल सेलुलॉइड पे अगर पोर्ट्रे करने मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी और कोई चीज़ आर्टिस्ट के लिए हो। ऑफ कोर्स, ट्रू। ओके, बट सर आपने कब डिसाइड किया कि आपको क्रिकेटर बनना है? एट व्हाट एज डिड यू? एक्चुअली माई फादर इज टू प्ले ऑल स्पोर्ट्स, मीन्स फुटबॉल भी खेलते थे, तो मैं पहले फुटबॉल भी खेलता था। Okay. ऐसे नहीं, प्रोफेशनल फुटबॉल भी खेला है मैंने, और मैं डैडी को ही फॉलो करता था, उनके मैचेस देखने जाता था। सो मैं स्टार्ट किया टेनिस बॉल से, फिर जो भी क्रिकेट खेलता था मैं किधर भी खेलता, गली में मिलता था उधर खेल लेता था। वो वैसे ही मेरा जो पैशन है वो क्रिकेट प्रति, मेरे डैडी को, और प्लस वो खेलते खेलते ही बढ़ गया। And Shreyash, for you, this is the second cricket film after Iqbal. Coincidentally, in both films, you are playing a bowler. So, could you tell us about the world of two films and how do you see this coincidence? No, next time I better be a batsman. Takes a lot out of you, but no, I think I consider myself extremely fortunate that in a career span I get to play two roles. Completely varied. One is a fictional story, one is a true story based on Praveen Tambe. But the journey of both these guys has been phenomenal. So that is what really appealed to me as an actor. But yes, I mean there I was a pace bowler. Here not many people know that Praveen Bhai used to bowl medium pace also before he switched to spin bowling. So वहाँ पे मतलब medium pace भी था, spin bowling भी था, और बैटिंग भी करते हैं तो बैटिंग भी था, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें थी, और इसमें बोलना भी है। उसमें ना मैं बोल रहा था ना सुन रहा था, बट इसमें वो भी है। सो आई थिंक एज एन एक्टर आई एम रियली आई कैन ओनली थैंक गॉड एंड Jaiprad and Foxstar and Sudeep and Bootroom guys for considering me for this particular part. Rahul Dravid ने अपने एक स्पीच में आपके बारे में बात करी थी, how you are the biggest inspiration, and he wanted to speak about you. जब वो मोमेंट हुआ था आपको कैसा फील हुआ था when he was saying that you are one of the biggest inspirations in cricketing world? It was touching for me क्योंकि उनके साथ मैं खेला था। और जब वो मेरे कैप्टन रह चुके थे और वो बाद में ये बात कहते हैं कि आई वॉज एन इंस्पिरेशन, तो हम लोग अभी भी उनको इज अ लीजेंड लाइक, और उनके मुंह से वो बात सुनने के बाद तो आई कुडंट स्टॉप क्राइंग एक्चुअली, नो आई वाज लिटरली क्राइंग कि व्हाट आई हैव डन, बिकॉज मुझे पता नहीं था मैंने ऐसे क्या किया है, या बट व्हाट आई हैव ड्रीम्ड ऑफ वो मुझे अचीव मिल गया वो, तो दैट वाज बिग फॉर मी। बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम सर राहुल सर, इट वाज रियली टचिंग फॉर मी। जब आप उनके साथ खेले, आपके इंटरैक्शंस क्या थे जब आप राहुल द्रविड़ कैप्टन थे, आप जब उनके साथ खेल रहे थे, एंड आई थिंक क्या किस प्रकार के इंटरैक्शंस थे आप? जस्ट एक नॉर्मल प्लेयर के, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ जब भी मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, सो आई डोंट टॉक एनीथिंग अबाउट, ओनली फॉर अबाउट क्रिकेट, अबाउट दैट मैच, पर्टिकुलर सिचुएशन। मैं जब भी बॉलिंग को आ रहा हूँ तो सर को क्या चाहिए, टीम के लिए क्या चाहिए, तो वही बातें होती थी, अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग डिफरेंट। 2017 में आप IPL में पर्पल कैप के ये थे, ओनर थे फॉर 25 मैचेस। आपने एक 5 विकेट हॉल भी लिया था, विच आई मीन इफ यू लुक एट इट 2017 में यू वर 46 एंड इट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। आपने आई मीन आई रिमेंबर बैक देन सब कोई सरप्राइज हो गया था, एंड यू वर द टॉकिंग पॉइंट ऑल अक्रॉस सोशल मीडिया। जब आपने वो 5 विकेट हॉल लिया था एंड जब आपको पर्पल कैप मिली थी, आपका क्या रिएक्शन था वो टाइम पे, और जो कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे थे आप उसको कैसे रिसीव किए थे? एक्चुअली वो 5 विकेट हॉल इस वाज इन 2010 में था। हाँ, पर्पल कैप मेरे को बीच में मिली थी, हाँ, IPL के बीच में मिली थी वो, या पर ऑब्वियसली एज ए बॉलर रहते हैं और जब भी पर्पल कैप होल्डर रहते हैं वो टूर्नामेंट के बीच में ही, तो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग, क्योंकि मुझे पता है वो कैप सिर्फ मुझे नहीं मिल रही है, वो टीम के लिए है। करेक्ट। क्योंकि मैं विकेट ले रहा हूँ और मेरी टीम जीत रही है, तो वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि मुझे पता था
कि अगर मैं ये करता रहूँगा तो मेरी टीम फाइनल तक जाएगी। तो वो एक बिग अचीवमेंट था जब ये मिली थी। तो ऑब्वियसली कोई भी बॉलर रहता है उसके लिए वो बहुत हॉनर रहता है। जब कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे थे आप उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे थे वो पॉइंट ऑफ टाइम पे? डेफिनेटली, क्योंकि जब भी कोई पर्पल कैप होल्डर रहता है वो टूर्नामेंट में, तो वही एक थिंकिंग रहती है कि मैं अभी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि वो जो पर्पल कैप होल्डर रहता है उसको अपना गेम और ऊंचा करना पड़ता है, क्योंकि पता है कि बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बैट्समैन लोग विकेट नहीं देंगे, मेरे ओवर्स खेल के निकालेंगे, तो मुझे और चैलेंजेस आने वाले हैं, तो मुझे उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, और वो वैसे ही होते रह गया। And Shreyas, what was the biggest takeaway for you from this story? That there is no expiry date to your dreams. Okay. You know, I mean, this has been such a huge inspiration for me as well. I mean, you read the story and you feel great about it. Then you become a part of it, you know, as an actor, and then you're completely immersed in making the film. And then, you know, you kind of see the trailer, or then you probably just think back as to कि क्या क्या किया मैंने, क्या कहानी थी, क्या क्या हुआ, and then obviously you feel कि यार ये क्या बंदा है कि जिसने छोड़ा ही नहीं, you know, एंड तक इतनी सारी कठिनाई, मुश्किलें, इतना सब कुछ आता गया, लेकिन अपना सपना था वो नहीं छोड़ा, you know, जो बनना था, जो करना था, वो हासिल करके ही उसको चैन मिला उस बंदे को। तो फिर वो एज वेज कुछ मैटर नहीं करता। And then you think कि हम लोग क्या सोचते हैं, you know, for example, there were times when we were shooting for the film and it was extremely, you know, physically taxing, emotionally taxing at times, and you feel कि नहीं यार हो गया, बस नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। And then you think of this guy, कि जो बंदा कि बिना थके, बिना हारे वो चलता रहा, तो हम लोग क्या चीज़ है यार। मुझे तो सिर्फ 45-50 डेज जो शूटिंग के उतना मुझे, you know, पंप करना है अपने आप को, so let me do it. But then it doesn't stay limited to that. In life also now, you know, he has been a huge inspiration. So, I mean, all thanks to him and thanks to Jaiprad for this wonderful film in my career. जैसे कि इन्होंने कहा, you know, आपने कभी भी ड्रीम करना स्टॉप नहीं किया, लेकिन थ्रू द जर्नी कभी ऐसा मोमेंट था जब आपने लगा कि नहीं बस अब नहीं हो रहा है मुझसे? ऐसे तो कभी नहीं लगा मुझे, बट जैसे कि बोला था, क्योंकि मैं सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेल रहा था, मेरी फैमिली लाइफ भी थी। तो एक क्वेश्चन आया था बीच में वाइफ की तरफ से कि कब तक अब, तो वो क्वेश्चन आया था, तभी मैं बोला अरे हाँ मेरी फैमिली लाइफ भी है और वो सोच रही इसके बारे में। तो मैं बोला क्या नहीं, अभी मैंने तो कुछ सोचा नहीं है ऐसे। वो एक आया था फेज, जब IPL खेलने के पहले का फेज था वो, और मुझे शायद आप देखोगे तो पता चलेगा क्योंकि वो स्टोरी है। तो आया था वो फेज, मगर मेरे तरफ से नहीं आया था, वो वाइफ की तरफ से आया था। ओके। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मेरे को बस है क्रिकेट खेलना, अभी भी ऐसा लगता है कभी गेम है बाहर तो जाके खेल लूँगा। अच्छा। तो मैं अभी सोचा नहीं था ऐसा, बट नाउ आई थिंक उनकी वाइफ ने, जयप्रदा टोल्ड मी दिस, एक बहुत अच्छी बात एक बार कही थी, जब हम शूट के पहले इंटरव्यूज चल रहे थे कि क्या क्या हो रहा था वगैरह, दैट टाइम यू नो आई थिंक शी हैड मेंशन कि ऐसी क्रिकेट के पीछे इतने पागल होते थे कि फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे। एंड तो उनको पूछा था वाइफ को कि क्या था, तो बोले नहीं मतलब बाकी के सारे हस्बैंड्स, यू नो, सारी वाइफ्स बोलते कि हमारे हस्बैंड के साथ हम यहाँ गए वहाँ गए, मैं तो कभी बोल ही नहीं पाई कि यहाँ लेके चलो, कुछ नहीं, क्रिकेट, परेशान हो गई थी। एंड देन शी सेड लेकिन उनके हस्बैंड्स IPL नहीं खेलते ना, मेरे हस्बैंड IPL खेलते। What next for you after this film? There's in fact one more film which I'll start now. I think I know. Yeah. It's a big one. Yeah, so hopefully in April is when we start shooting for that, and yeah, but that's it. But I'm right now, you know, I'm completely focusing on the release of Praveen Tambe because I'm very excited about it. The trailer gives that vibe, so I'm sure. Thank you so much. Thank you. And so last words from the two of you before we wrap this up. जस्ट एक ही बोलना चाहता हूँ कि ये फिल्म ज़रूर देखना, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मेरे को आते थे इंडिविजुअली वो आपको ये फिल्म के द्वारा एक्चुअली मिल जाएंगे। तो होप ये इंस्पायर करेगा नॉट ओनली क्रिकेटर बट ऑल स्पोर्ट्स पर्सन, ऑल लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड एवरीवन एक्चुअली। आई थिंक यू नेवर स्टॉप ड्रीमिंग योर ड्रीम। See, exactly वही कि हम सब में ऐसे कुछ अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं, हम सब में कुछ सपने हैं जो कभी हुए नहीं, और हमने फिर एक कुछ दिनों बाद वो चैप्टर बंद कर दिया कि यार ये नहीं होगा इस लाइफ में, बच्चों से होगा शायद, हम फिर बच्चों को पुश करते हैं कि आप करो, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, यू नो, सपनों की कोई उम्र नहीं होती, आप देयर इज ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग, और जब तक आप नहीं हारते
you are capable of achieving your dreams. एक ही चीज आपको रोकती है, वो हो आप. Thank you so much, guys. It was lovely speaking to you, and wish you all the best for the release. Thank you so much. Lovely speaking to you too, Yogesh. Thank you.